اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ آج کا ہمارا پروگرام چوتھا پارٹ ہے۔ عبید اللہ لطیف بھائی نے جو سلسلہ شروع کیا تھا ایک غلطی کا ازالہ یا قادیانی مغالطے، اس کا یہ چوتھا پارٹ ہے اور انتہائی تحقیقی لیکچر ہوگا آج کا انشاءاللہ۔ تو مزید بلا تاخیر کے ہم جو ہے بڑھتے ہیں ہمارے محترم مجاہد ختم نبوت عبید اللہ لطیف بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء بھائی میری آواز صحیح ہے، کلیئر آ رہی؟ جی ٹھیک آ رہی ہے آواز آپ۔ ٹھیک، بسم اللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اما بعد۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مجھ کو کشاد بگڑی بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہو حبیب کبریا احمد المصطفیٰ جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج کا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ماہ رمضان سے قبل میں نے شروع کیا تھا، ایک غلطی کا ازالہ یا قادیانی مغالطے۔ ماہ رمضان گزرنے کے بعد کچھ مصروفیات ایسی بڑھی کہ آپ سے رابطہ منقطع رہا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے باقاعدگی کے ساتھ جو ریگولر پروگرام کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے اور اس کے اندر کوئی چھٹی نہ آئے۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کتاب ہے مرزا صاحب کی، روحانی خزائن جلد 18 ہے، اور ایک غلطی کا ازالہ اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں، روحانی خزائن جلد 18 ہے، اس کے صفحہ نمبر 206-7 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات لکھی کہ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے، نیچے سے دوسرے نمبر پر آپ تسلی سے دیکھ سکتے ہیں۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے، اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لکھتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اس کے جلال کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، مرزا صاحب کی اس تحریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں کہ سیرت صدیقی کا جو رستہ ہے فنا فی الرسول کا، سیرت صدیقی کو اپنا کر کے انسان نبوت تک پہنچ سکتا ہے۔ صرف یہی دروازہ کھلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں کھلا نبوت کا۔ تو ہم یہ واضح کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سے پہلے جو الفاظ لکھے وہ یہ تھے کہ ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے، اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔
क़ारिन इकराम कुरान करीम की आयत में किसी भी किस्म की पेशगोई का कोई जिक्र नहीं है, ना ही इससे कबल किसी मुफस्सिर या मुहद्दिस ने इस आयत की ऐसी कोई तफसीर की है। ये सिर्फ और सिर्फ मिर्जा जी ने अपनी खुद साख्ता नबूवत को जवाब बख्शने के लिए एक पंक्चर लगाया है। दूसरी बात मिर्जा जी ने जो ये लिखी है कि नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद की गई मगर एक खिड़की सीरत सदीकी की खुली, यानी फना फिर रसूल की। बस जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है उस पर ज़िल्ली तौर पर वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नबूवत मोहम्मदी की चादर है। तो इस हवाले से अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि अगर मिर्जा जी की बात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो सवाल पैदा होता है कि मिर्जा जी ने अपने दस्ते रास्त हकीम नूरुद्दीन को खुद अबू बकर सिद्दीक करार दिया है। ये देखिए, उसने बाकायदा तौर पे अपनी किताब हमामतुल बुशरा में, ये मेरे पास हमामतुल बुशरा मुतरजम मौजूद है, लाहौरी गिरोह का तर्जमा है, अंजुमन अशात अहमदिया लाहौरी का तर्जमा, ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं। और कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर भी ये किताब मुतरजम शक्ल में मौजूद है, वहाँ पर भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता तर्जमा है। तो मिर्जा साहब लिखते हैं, फशकुरुल्लाह अला मा आतानी कमा सलाहाज सदीक सदूक अल्फाजिल जलील अलबाकिर दकीक नजर अमीक अलफिक्र मुजाहिद लिल्लाह वल मुहिब्बु फिल्लाह बेकमाल खलास। बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये ऐसा सदीक दिया जो रास्त बार और जलीलुल कदर फाजल है, बारीक बीन गहरी फिक्र रखने वाला, अल्लाह के लिए मुजाहदा करने वाला और कमाल अखलाक से अल्लाह से ऐसी मोहब्बत रखने वाला है। यानी यहाँ पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब खुद जो है हकीम नूरुद्दीन साहब को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बराबर रुतबा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सिद्दीक है। और ये जो अपना कादियानी गिरोह की वेबसाइट पर मुतरजम किताब मौजूद है, उसके सफ़ा नंबर 30 और 31 पर है। ये जो मैंने पेश की है अंजुमन अशात अहमदिया लाहौरी गिरोह की, इसके सफ़ा नंबर 29 पर यह तहरीर मौजूद है। और फिर इसी तरह नाजरीन, कादियानियों के ऑफिशियल अखबार अल फजल 14 मार्च 1946 के शुमारे में अब्दुल हमीद आसिफ नामी कादियानी का एक मजमून छाया हुआ जिसमें उसने लिखा कि मुबारका बेगम ने एक ख्वाब देखा कि हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब एक किताब लिए बैठे हैं और कहते हैं कि देखो इस किताब में मेरे मुताल्लिक हजरत साहब के अलहामात हैं और मैं अबू बकर हूँ। मजीद आगे चल के मजमून नगार लिखता है, कितनी शानदार सदाकत है कि हजरत मसीह मऊद का आना रसूल करीम का आना है और आपके बाद खलीफा अव्वल यानी मौलवी नूरुद्दीन का वजूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक का वजूद है। हजरत मौलवी साहब की वफात 13 मार्च 1914 को हुई। इस वक्त जमात एक यतीम की तरह रह गई थी, इस वक्त जमात एक यतीम की तरह रह गई थी, मगर वो खुदा ताला जिसने ये वादा किया था कि मोमिनीन की जमात में से खुलफा चुनता रहेगा, उसने अपने फजल से अपने वादा को पूरा करके दिखा दिया कि हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी फौत हुए तो उसने हमें सदीक अता फरमाया और जब सदीक फौत हुआ तो अपने फजल से हमें उमर अता फरमाया। यानी हकीम नूरुद्दीन कादियानियों के नज़दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे पर फायज है और बशीरुद्दीन महमूद जो है वो कादियानियों के नज़दीक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे पर फायज है। इसी तरह हजरात गिरामी कदर भारत से शाया होने वाले कादियानी मैगजीन महनामा मिशकात जून 2011 के शुमारे में बुरहान अहमद जफर की सालाना जलसा कादियां पर की जाने वाली एक तकरीर शाया हुई जिसमें हकीम नूरुद्दीन की बहुत सारे मामलात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से मुशाबहत बयान की गई है। इन तमाम बातों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर नबूवत के लिए सिर्फ सीरत सदीकी की खिड़की खुली है तो हकीम नूरुद्दीन जिसे मिर्जा जी खुद सदीक करार दे रहे हैं, नबी क्यों ना बने।
इससे बढ़कर ये सवाल पैदा होता है कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला खुद क्यों नबी ना बने। फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि सीरत सदीकी के रास्ते नबूवत का दावा करने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कैसे बढ़ गया, जबकि वो खुद लिखता है। मजमुआ इश्तहारात है, ये जिल्द दोम है, आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है। ये मजमुआ इश्तहारात जिल्द दोम है, सफ़ा नंबर 394 है इसका। ये देखिए, उसमें बाकायदा तौर पे खुद उसने इस बात का ऐलान किया है। ये देखिए, ये तहरीर हाईलाइट की हुई है पीले कलर में, ये देख सकते हैं आप। लिखता है कि मैं वही मेहदी हूँ जिसकी निस्बत इब्ने सीरीन से सवाल किया गया कि वो हजरत अबू बकर के दर्जा पर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर तो क्या, वो तो बाद अंबिया से भी बेहतर है। अब सीरत सदीकी के जरिए जो रास्ता इसने नबूवत का खोला है, उस खिड़की से नबूवत हासिल करने वाला खुद को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से बढ़ के करार दे रहा है। और सवाल जो मैंने रखा है कि अगर सीरत सदीकी के जरिए नबी बनना होता तो जिसकी सीरत को अपना कर नबी बनते हो तो वो खुद नबी क्यों ना बन गया? क्या उसकी सीरत ज्यादा बेहतर थी या तुम्हारा उसकी सीरत को अपनाना ज्यादा बेहतर था? ये काबिल गौर बात है, सोचने की बात है। ये एक बहुत बड़ा धोखा दिया है, मगालता दिया है गलती का अजाला नामी किताब में मिर्जा साहब ने। तो नाज़रीन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इससे आगे अपने आप को बतौर जिल्ली बरोजी नबूवत के तौर पर पेश किया है। चनांचे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, ये सफ़ा नंबर 207 से लेकर के 209 तक की तहरीर में आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से आगे लिखता है, इसीलिए इसका नाम आसमान पर मोहम्मद और अहमद है। इसके ये मानी है कि मोहम्मद की नबूवत जो है आखिर मोहम्मद को ही मिली, गो बरोजी तौर पर, मगर ना किसी और को। बस ये आयत के मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इसके मानी ये हैं कि लैसा मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिद दुनिया वलाकिन हुवा अबू लिरिजालिल आखिरा लिअन्नहु खातमन नबिय्यीन वला सबीला इला फयूजुल्लाह मिन गैर तवस्सतिही। गरज मेरी नबुव्वत और रसालत बअतबारे मोहम्मद और अहमद होने के है, ना मेरे नफ्स की रूह से, और ये नाम बहसियत फना फिर रसूल मुझे मिला है। लिहाजा खातमुन नबिय्यीन के मफहूम में कोई फर्क ना आया। फिर आगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, लेकिन ईसा के उतरने से जरूर फर्क आएगा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने से जरूर फर्क आएगा। और ये भी याद रहेगी कि नबी के मानी लुगत की रूह से ये है कि खुदा की तरफ से इतला पाकर गैब की खबर देने वाला। बस जहां ये मानी सादक आएंगे, नबी का लफ्ज भी सादक आएगा, और नबी का रसूल होना शर्त है, क्योंकि अगर वो रसूल ना हो तो फिर गैब मुसफ़्फ़ा की खबर उसको मिल नहीं सकती। और ये आयत रोकती है कि ला युज़हरा अला गैबि अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। अब अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन मानों से कि रूह से नबी से इनकार किया जाए तो इससे लाजम आता है कि यह अकीदा रखा जाए कि यह उम्मत मकालमात व मुखातबात अलाइया से बेनसीब है, क्योंकि जिसके हाथ पर अखबार गैबिया में जानिब अल्लाह ज़ाहिर होंगे वे जरूर उस पर मुताबिक आयत ला युज़हर अला गैबिही के मफहूम नबी का सादक आएगा। इसी तरह जो खुदा ताला की तरफ से भेजा जाएगा उसी को हम रसूल कहेंगे। फर्क दरमियान ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक ऐसा नबी कोई नहीं जिस पर जदीद शरीयत नाज़िल हो, या जिसको बगैर तवस्सुत जनाब और ऐसी फना फिर रसूल की हालत के जो आसमान पर उसका नाम मोहम्मद और अहमद रखा है, यूं ही नबूवत का लक़ब अनायत किया जाए। वमन अज़ा फ़क़द कफ़र, इसमें असल बेत यही है कि खातमुन नबिय्यीन का मफ़हूम तकाज़ा करता है कि जब तक कोई पर्दा मुगायरत का बाकी है उस वक्त तक अगर कोई नबी कहलाएगा तो गोया उस मोहर को तोड़ने वाला होगा जो खातमुन नबिय्यीन पर है। लेकिन अगर कोई शख्स उसी खातमुन नबिय्यीन में ऐसा गुम हो कि वो बाइस नहायत इत्तेहाद और नफी गैरियत के इसी का नाम पा लिया हो और साफ आईना की तरह मोहम्मद
चेहरा का उस समय इनकास हो गया हो तो वो बगैर मुहर तोड़ने के नबी कहलाएगा, क्योंकि वो मोहम्मद है, वो जिल्ली तौर पर। बस बावजूद उस शख्स के दावा नबूवत के जिसका नाम जिल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद रखा गया, फिर भी सैयदना मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन ही रहा, क्योंकि ये मोहम्मद सानी उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर और उसी का नाम है। फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आगे लिखता है सफा नंबर 209 और 210 पर वाज़े तौर पर लिखता है कि अगर खुदा ताला से गैब की खबर पाने वाला नबी का नाम नहीं रखता तो फिर बतलाओ किस नाम से उसको पुकारा जाए। अगर कहो कि उसका नाम मुहद्दिस रखना चाहिए तो मैं कहता हूँ तहदीस के मानी किसी लुगत की किताब में इज़हारे गैब नहीं है, मगर नबुव्वत के मानी इज़हारे अमर गैब हैं। और नबी एक लफ्ज़ है जो अरबी और अबरानी में मुश्तरक है, यानी अबरानी में इसी लफ्ज़ को नाबी कहते हैं और ये लफ्ज़ नाबा से मुश्तक है, जिसके ये मानी है कि खुदा से खबर पाकर पेश गोई करना। और नबी के लिए शारे होना शर्त नहीं, ये सिर्फ मोहब्बत है जिसके जरिया से अमूर गैबिया खुलते हैं। बस मैं जब के इस मुद्दत तक 150 पेश गोई के करीब खुदा की तरफ से पाकर बचश्मे खुद देख चुका हूँ कि साफ तौर पर पूरी हो गई, तो मैं अपनी निस्बत नबी या रसूल के नाम से क्यों कर इनकार कर सकता हूँ। और जबकि खुद खुदा ताला ने ये नाम मेरे रखे हैं तो मैं क्यों कर रद्द कर दूं या क्यों कर उसके सिवा किसी दूसरे से डरूं। मुझे उस खुदा की कसम है जिसने मुझे भेजा और जिस पर इफ्तरा करना लानतियों का काम है कि उसने मसीह मौद बनाकर भेजा। और मैं जैसा कि कुरान शरीफ की आयत पर ईमान रखता हूँ, ऐसा ही बगैर फर्क एक जर्रा के खुदा की इस खुली खुली वही पर ईमान लाता हूँ जो मुझे हुई, जिसकी सच्चाई उसके मुतबातर निशानों से मुझ पर खुल गई है। और मैं बैतुल्लाह में खड़े होकर ये कसम खा सकता हूँ कि वो पाक वही जो मेरे पर नाज़िल होती है वो खुदा का कलाम है, जिसने हजरत मूसा और हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाज़िल किया था। तो हजरात गिरामी के आगे एक और तहरीर पेश करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की, फिर इस पर मैं तबसरा करता हूँ। आगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है सफा नंबर 212 रूहानी जिल्द 18 के ऊपर ही कि मैं कहता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दर हकीकत खातमुन नबिय्यीन थे, मुझे रसूल और नबी के लफ्ज़ से पुकारे जाना कोई एतराज की बात नहीं, और ना इससे मोहर खत्मियत टूटती है, क्योंकि मैं बारहा बतला चुका हूँ कि मैं मुजब आयत आखरीन मिनहुम लम्मा यलहक़ु बिहिम बरोज़ी तौर पर वही नबी खातमुल अंबिया हूँ। और खुदा ने आज से 20 बरस पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया है। बस इस तौर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल अंबिया होने में मेरी नबूवत से कोई तजल्जुल नहीं आया, क्योंकि ज़िल अपने असल से अलहदा नहीं होता, और चूँकि मैं ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इस तौर से खातमुन नबिय्यीन की मोहर नहीं टूटी, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मोहम्मद तक ही महदूद रही, यानी बहरहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी रहा, ना और कोई। यानी जबकि मैं बरोज़ी तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और बरोज़ी रंग में तमाम कमालात मोहम्मदी मा नबूवत मोहम्मदिया के मेरे आईना ज़िल्लियत में मुनाकस हैं, तो कौन सा इंसान हुआ जिसने अलहदा तौर पर नबूवत का दावा किया। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बाकायदा तौर पे ये सफ़ा नंबर 212 है, तहरीर मिर्जा साहब की हाईलाइट की जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। हज़रात गिरामी कदर, इस तहरीर को जो मैंने 3 तहरीरें मिर्जा साहब की गलती का अदालत से पढ़ के सुनाई हैं आपको, उससे जो चीज़ें साबित होती हैं वो ये है कि जो नंबर 1, जो शख्स सीरत सदीकी की खिड़की के रास्ते से आता है उस पर ज़िल्ली तौर पर वही चादर पहनाई जाती है जो नबूवत मोहम्मदिया की चादर है। इस एक पॉइंट इसको जहन में बैठा लीजिए। दूसरा पॉइंट, आयत मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन के मानी लैसा मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिद दुनिया वलाकिन हुवा अबू लिरिजालिल आखिरा लिअन्नहु खातमुन नबिय्यीन वला सबीला इला फयूदिल्लाह मिन गैरि तवस्सुतिही, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि वो आखिरत के मर्दों के बाप हैं, क्योंकि वो खातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह के फैज़ का कोई रास्ता नहीं सिवाय उनके तवस्सुत से।
तीसरा पॉइंट जो मिर्जा साहब ने यहाँ पर बयान किया वो ये था कि मिर्जा साहब कादियानी को जिल्ली बरोज़ी नबुव्वत मिलने से खातमुन नबिय्यीन के मफहूम में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि ईसा नबीउल्लाह के नज़ूल से जरूर फर्क आएगा। चौथी बात जो मिर्जा साहब की इस तहरीर से साबित होती वो ये है कि नबी के मानी लुगत अरब की रूह से खुदा की तरफ से इत्तला पाकर गैब की खबर देने वाला है। नबी का रसूल होना शर्त है, अगर रसूल ना हो तो गैब की खबर उससे नहीं मिल सकती। और आयत आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल इससे रोकती है, जिस पर ये अमूरे गैबिया मिन जानिबुल्लाह ज़ाहिर हूं वो इस आयत की रूह से जरूर नबी होगा। पांचवी बात जो मिर्जा साहब की तहरीर से साबित हुई है कि मिर्जा साहब कादियानी सीरत सदीकी की खिड़की जो फना फिर रसूल है के रास्ते से नबी बने हैं, और बावजूद दावा नबुव्वत के वो जिल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद और मिर्जा जी खुद मोहम्मद सानी भी हैं, इसलिए वो जिल्ली तौर पर खातमुन नबिय्यीन भी है। छठी बात, गैब की खबरें पाने वाले का नाम मुहद्दिस नहीं रखा जा सकता, ये मिर्जा साहब का कहना है। सातवीं बात, मिर्जा साहब कादियानी पर नाजिल होने वाली वही उसी खुदा का कलाम है जिसने हजरत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की। आठवीं बात जो साबित हुई वो ये थी कि मिर्जा कादियानी अपनी वही पर इसी तरह ईमान रखता है जिस तरह उसका कुरान करीम पर ईमान था। नौवीं बात जो साबित हुई कि तमाम कमालात मोहम्मदी नबुव्वत मोहम्मदिया समेत मिर्जा जी के आईना जिलियत में मुनक्कस है। 10वीं बात, आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा जलहकु बिहिम के तहत वो खुद खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो दोबारा मबऊस हुआ। ये 10 पॉइंट हैं मिर्जा साहब की इन तहरीरों से। तो फिर आगे मैं बताता हूँ हजरात किराम कहते हैं अब इन 10 नकात की स्टेप बाय स्टेप आपके सामने हकीकत बयान करते हैं ताकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दजल और उसके फरेब की कलई खोली जा सके। लेकिन इससे पहले जिल और बरोज की हकीकत आपके सामने बयान करना चाहूंगा। सवाल तो ये है कि लफ्ज़ जिल और बरोज के मानी क्या है। जो मिर्जा साहब ने अपने आप को कभी कहा मैं जिल्ली नबी हूँ, कभी कहा मैं बरूजी नबी हूँ, इनके मानी एक ही हैं या दोनों के मानी अलग अलग हैं? हज़रात गिरामी कदर जिल अरबी का लफ्ज़ है। साहिबुल मुंजद ने जिल का मानी साया और बरोज का मानी मैदान की तरफ निकलना बयान किया है। इसी तरह अगर हम ये कहें कि ये दोनों लफ्ज फारसी के हैं तो तब भी याद रखना चाहिए कि साहब फिरोजुल लगात ने जिल का मानी साया और बरोज का मानी नजर आना, जाहिर होना, नुमाया होना और आश्कार होना बयान किया है। कुरान करीम में भी कई एक मकामात पर लफ्ज बरदा और बरदा वगैरह आया है, बराजू वगैरह आए हैं। तो अब आपके सामने कुरान करीम की चंद आयात पेश करता हूँ, पता चले कि कुरान करीम के अंदर जो आयात पेश हुई हैं वहां पर बरोज या बरदा का मानी क्या है। तो सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाता है व बरज़ू लिल्लाहि जमीआ, कि सब के सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े हो जाओ, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। बरज़ू का माना सूरह इब्राहिम से पता चला कि सामने खड़ा होना, रूबरू खड़ा होना है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम की एक और आयत नंबर 48 में 48 में फरमाया यौम तबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जिस दिन जमीन के सिवा और ही बदल दी जाएगी और आसमान जो सब के सब वाहिद गलबे वाले के रूबरू होंगे, सामने होंगे। यानी पता चला कि सब जो हैं वो बिल्कुल रूबरू और सामने होंगे, बरज़ा का माने। फिर आगे सूरह बकरा की आयत नंबर 250 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बत अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, कि जब उनका जलूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ, यहाँ पर भी जो है बिल्कुल आमने सामने मुकाबला, मध्य मुकाबला आना, सामने आना, रूबरू आना। फिर आगे अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया है सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि आमनतन नाअसन यग़शा ताइफ़तम मिनकुम व ताइफ़तन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ ज़न्नल जाहिलिय्यत यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शैइन कुल इन्नल अम्रु कुल्लुहु लिल्लाहि युख्फूना
फी अनफुसिहिम मा ला युबदून लका यक़ूलून लौ कान लना मिनल अमल शैउन मा कुतिलना हाहुना कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमहसा मा फी कुलूबिकुम वल्लाहु अलीम बिज़ाति सुदूर। सूरह आल इमरान आयत नंबर 154 है। फरमाया फिर उसने उस गम के बाद तुम पर अमन नाज़िल फरमाया और तुम में से एक जमात को अमन की नींद आने लगी। हाँ, कुछ वो लोग भी थे कि उन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी। वो अल्लाह ताला के साथ नाहक जहालत बड़ी बदगुमानियां कर रहे थे और कहते थे क्या हमें भी किसी चीज का इख्तियार है। आप कह दीजिए कि काम कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है, किसी और के इख्तियार में नहीं। ये लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते। कहते हैं अगर हमें कुछ भी इख्तियार होता तो जहां कत्ल न किए जाते। तो अल्लाह मेरे नबी आप फरमा दीजिए गो तुम अपने घरों में होते फिर भी जिनकी किस्मत में कत्ल होना था वो तो मक्तल की तरफ चल खड़े होते। अल्लाह ताला को तुम्हारे सीनों के अंदर की चीज का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको पाक करना था और अल्लाह ताला सीनों के भेद से आगाह है। जहां पर भी बरज़ा का माना मैदान की तरफ निकलना बयान हुआ। फिर एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया है वयक़ूलून ताअतन फ़इज़ा बरज़ू, फरमाया ये कहते हैं कि अतात है फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं, यानी बाहर निकलते हैं। यहाँ पर भी बरज़ा का माना निकलना, बाहर निकलना। फिर दूसरे मकाम पर फरमाया सूरह मोमिन आयत नंबर 16 में यौमहुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अल्लाहि मिनहुम, जिस दिन सब लोग ज़ाहिर हो जाएंगे। कुरान करीम की इन तमाम आयात में जो लफ्ज़ बरज़ा बरज़ू आया है वहां से पता ये चला है कि बरज़ा का माना, बरूज का माना निकलना, रूबरू आना, सामने आना और ज़ाहिर होना है। तो नाज़रीन इसके बाद सोचिए कि कृष्ण कादियानी ने ये बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि मैंने ऊपर जितने भी कुरानी आयात पेश की हैं उनमें बरज़ा का मानी ज़ाहिर होना बयान किया गया है। यानी जो जिस्म छुप गया था वही ज़ाहिर हुआ, वो जो जिस्म सामने आ जाए। इसलिए नामुमकिन है कि इस लफ्ज़ का इतलाक ऐसे शख्स पर किया जाए जो खुद वही शख्सियत के एतबार से अपना गैर होना तस्लीम करता हो। इन आयात की रोशनी में भरोसे मोहम्मदी के मानी तो यही बनते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद मदीना मुनव्वरा के मरकज़ मुबारक से उठ बैठे, जो इस दुनिया में तो नामुमकिन है क्योंकि हम सब का ईमान है कि ऐसा वाक़या नफ़ख़ सूर के बाद ही मुमकिन होगा, ना कि उससे पहले। तो जनाब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बरूद मोहम्मदी कैसे हो गया? फिर कृष्ण कादियानी ने अपने ज़िली बरूदी तौर पर वजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने के लिए सीरत सदीकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और सीरत सदीकी की खिड़की से दाखिल होने वाले को नबूवत की चादर पहनाए जाने का जिक्र किया है। इस पर हमारा सवाल ये है कि क्या ये चादर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी कभी पहनाई गई या नहीं, और क्या कभी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी कभी ज़िली बरूदी तौर पर मोहम्मद तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया गया या नहीं? अगर नहीं तो मिर्जा जी इस खिड़की के जरिए कैसे मोहम्मद बन बैठे? हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बस्त रसूल का जिक्र किया, वहां इन्नल्लाह माना कहकर उनकी मायत का इज़हार फरमाया और इस मायत के लिए लफ्ज़ ले साहिब ही बयान फरमाया। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के लिए नबूवत मुमकिन नहीं तो सीरत सदीकी के रास्ते मिर्जा जी के लिए क्यों कर मुमकिन हो गई? है कोई कादियानी इस पर गौर फिक्र करने वाला? हज़रात किरामी कदर, आयत मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन के मानी लैसा मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिद दुनिया वलाकिन हुवा लिरिजालिल आखिरा लिअन्नहु खातमुन नबिय्यीन वला सबील इला फयूदिल्लाहि मिन गैरि तवस्सुतिही। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि आखिरत के मर्दों के बाप हैं, क्योंकि वो खातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह के फैज़ का कोई रास्ता नहीं सिवाय उनके तवस्सुत से। करना भी मिर्जा जी की अपनी ज़हनी इख्तिराअ और बातिल तवील है, क्योंकि सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन और सब सालिहीन में से और किसी ने भी ये माना नहीं किया जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किया है। हज़रात गिरामी कदर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ये कहना कि नबी के मानी लुगत अरब की रूह से खुदा की तरफ से इत्तला पाकर
गैब की खबर देने वाला है। नबी का रसूल होना शर्त है, अगर रसूल ना हो तो गैब की खबर उसे नहीं मिल सकती। और आयत आलिमुल गैब फला युज़हिरू अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, इससे रोकती है। और जिस पर ये अमूर गैबिया मिन जानिबिल्लाह ज़ाहिर, वो इस आयत की रूह से जरूर नबी होगा। गैब की खबरें पाने वाला का नाम मुहद्दस नहीं रखा जा सकता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ये बात भी सरासर झूठ और धोखे पर और गलत बयानी पर मबनी है। आइए हम मिर्जा कादियानी की तहरीर से ही पेश कर सकते हैं। मिर्जा कादियानी का ये कहना है कि जिस पर ये अमूर गैबिया अल्लाह ताला की तरफ से जाहिर हूँ, वो इस आयत की रूह से जरूर नबी होगा। और गैब की खबरें पाने वाले का नाम मुहद्दस नहीं रखा जा सकता। तो जनाब मिर्जा साहब को तो ये ही नहीं पता था कि उसने पहले क्या कहा है, क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 है, किताब आईना कमालात इस्लाम है, जिसका दूसरा नाम दाफिउल वसावस भी है। और उसके अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सफ़ा नंबर 322 पर, ये आप देख सकते हैं, ये तहरीर ऑरेंज कलर में हाईलाइट की हुई है, लिखा हुआ सफ़ा नंबर 322 पर कि फला युज़हिरू, लिखता फला युज़हिरू अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। रसूल में रसूल का लफ्ज आम है, जिसमें रसूल और नबी और मुहद्दस दाखिल हैं। जनाब ये देखिए, इस आयत में मिर्जा जी ये दावा कर रहे हैं अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम में कि इसमें जो रसूल का लफ्ज है वो आम है, उसमें नबी भी शामिल है, रसूल भी शामिल है और मुहद्दस भी शामिल है। और एक गलती का इजाला में मिर्जा कादियानी लिखता है जनाब कि गैब की खबरें पाने वाले का नाम मुहद्दस नहीं रखा जा सकता। इस आयत की रूह से जहां पर भी लिख रहा है, कहता है आयत आलिमुल गैबी फला युज़हिरू अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, इससे रोकती है। और जिस पर ये अमूर गैबिया में जानिबिल्लाह ज़ाहिर हूँ, वो इस आयत की रूह से जरूर नबी होगा। गैब की खबरें पाने वाले का नाम मुहद्दस नहीं रखा जा सकता। अब बताइए मिर्जा जी ये गलती का दाला में गलत बयानी से काम ले रहे हैं या अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 के सफ़ा 322 पर आईना कमालात इस्लाम में भी यही आयत पेश करके मिर्जा कादियानी कहता है कि इसमें लफ्ज़ रसूल जो है वो आम है, उसमें नबी, रसूल और मुहद्दस भी शामिल है। और फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब रूहानी खज़ाइन जिल्द 6 के अंदर, किताब का नाम है शहादतुल कुरान, सफ़ा नंबर 223 और 224 के ऊपर जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है। ये देखें, ये मैंने खोली, ये देख सकते हैं, ये सफ़ा नंबर 223 और इसके आगे 224 में मिर्जा कादियानी लिखता है और जैसा कि खुदा ताला ने नबियों का नाम मुरसल रखा, ऐसा ही मुहद्दिसीन का नाम भी मुरसल रखा। इसी इशारा की गरज से कुरान शरीफ में वकफ़ैना मिन बादिही बिरुसल आया है, और ये नहीं कि कफ़ैना मिन बादिही बिल अंबिया। बस ये इस बात की तरफ इशारा है कि रुसल से मराद मुरसल हैं, का वो रसूल हूँ या नबी हूँ या मुहद्दस हूँ, क्योंकि हमारे सैयद व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं और बाद हज़रत सल्लम के कोई नबी नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए इस शरीयत में यानी शरीयत मोहम्मदिया में नबी के कायम मकाम मुहद्दस रखे गए हैं। जनाब कुरान करीम की आयत पेश करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत मोहम्मदिया में नबी के कायम मकाम मुहद्दस रखे गए हैं। और गलती का दाला में मिर्जा कादियानी लिखता है नहीं नहीं नहीं, जिस पर गैब की खबरें ज़ाहिर हों उसका नाम मुहद्दस नहीं रखा जा सकता। अब बताएं ये शहादतुल कुरान में आईना कमालात इस्लाम में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने गलत बयानी से काम लिया या गलती का अजाला में धोखा देने की कोशिश की? फैसला कादियानी हजरात आपने खुद करना है। फिर इसी तरह आईना कमालात इस्लाम रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 के सफ़ा 383 पर भी लिखा है अल्लस्ता बिनबिय्यिन वलाकिन्ना मुहद्दसुल्लाह व कलीमुल्लाह ला अजदद दीन अल मुस्तफा, कि अब
जिसको खबर दी जाएगी गैब की, वो अल्लाह की तरफ से मुहद्दस है और वो दीन मुस्तफ़ा का मुजद्दद है, वो कलीमुल्लाह है। और याद रखिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब अज़ाला ओहाम के अंदर रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 के सफ़ा नंबर जनाब 320 के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है। मैं आपको वो भी पेश कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है और इसका सफ़ा नंबर जो है 320 है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये तहरीर हाईलाइट की हुई है। लिखता है नबुव्वत का दावा नहीं है। कहता है सवाल हुआ कि रसाला फतेह इस्लाम में नबुव्वत का दावा किया है। जवाब देता है नबुव्वत का दावा नहीं बल्कि मुहद्दसियत का दावा किया है, जो खुदा ताला के हुक्म से किया गया। और इसमें क्या शक है, मुहद्दसियत भी एक शोबा कविया नबुव्वत का अपने अंदर रखती है। जिस हालत में रोया साले नबुव्वत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। जनाब यहाँ पर मिर्ज़ा जी कह रहे हैं मैंने नबुव्वत का दावा नहीं किया, मुहद्दसियत का दावा किया है। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है। और इसके बाद अगर हम तज़किरा खोलते हैं तो तज़किरा के सफ़ा नंबर 82 पर इसका अल्हाम मौजूद है कि अंत मुहद्दस अल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला की तरफ से मुहद्दस है। फिर हज़रात गिरामी कदर मुहद्दस की तारीफ करते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब अज़ाला ओहाम रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 के सफ़ा 407 पर, ये देखिए रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है, सफ़ा नंबर 407 है। उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है, ये आपके सामने खुला हुआ है, ये सफ़ा नंबर 407 है। उसमें मिर्ज़ा कादियानी लिखता है मुहद्दिस जो मुरसलीन में से है, उम्मती भी होता है और नाक़िस तौर पर नबी भी। उम्मती वो इस वजह से कि खुदा ताला नबियों का सा मामला उससे करता है, और मुहद्दिस का वजूद अंबिया और उमम में बतौर बरज़ख के अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और अगरचे कामल तौर पर उम्मती है मगर एक वजह से नबी भी होता है। और मुहद्दिस के लिए ज़रूरी है कि वो किसी नबी का मसील हो और खुदा ताला के नज़दीक वही नाम पावे जो उस नबी का नाम हो। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है। मिर्ज़ा कादियानी ने यहाँ पर अपने आप को मुहद्दिस भी करार दिया और मुहद्दिस की तारीफ भी बयान की। वो तारीफ क्या है कि मुहद्दिस के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी नबी का मसील हो, उस नबी का नाम पाए। अब देखिए, ये मेरे हाथ में हमामतुल बुशरा है और रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 का सफ़ा 246 है। हमामतुल बुशरा जो ये आप देख सकते हैं, अंजुमन शात अहमदिया लाहौर का तर्जुमा है, ये आपके सामने खुला हुआ सफ़ा नंबर 184। उसमें मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कमा ज़अमहु उमर अल्लज़ी यजरिल हक़ अला लिसानिही वलहु शानुन अज़ीम फ़ी राय साहिब वल राय मुवाफ़िक़ा बिअहकामिल कुरान फ़ी मवाज़िअ व मा ज़ालिका व हुवा मुल्हिम व मिनल मुहद्दिसीन। उमर ने ख्याल किया जिनकी ज़बान पर हक जारी होता है और जो साहिबुर राय होने में अज़ीम शान और कि उनकी राय कई मकाम पर कुरान के मुवाफिक हुई और उसके साथ वो मुल्हिम और मुहद्दिसीन में से हैं। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक मुल्हिम भी हैं और मुहद्दिस भी हैं। और मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक मुहद्दिस की तारीफ ये है कि उसके लिए, मुहद्दिस के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी नबी का मसील हो और उस नबी का नाम पाए। तो कादियानी हज़रात, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस नबी के मसील थे? उन्होंने किस नबी के मसील होने का दावा किया था? क्योंकि हम भी मानते हैं वो मुहद्दिस थे। तो उन्होंने किस नबी के मसील होने का दावा किया था और किस नबी का नाम पाया था, ये बताना आपने। अगर ना बता सको तो मान लीजिए आपके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को तो मुहद्दिस की तारीफ नहीं आती थी। अगर उसकी तारीफ दुरुस्त है तो फिर बताइए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस नबी के मसील होने का दावा किया था और किस नबी का नाम पाया था। और याद रखिए हज़रात गिरामी कदर, इसी तरह तौज़ीम आराम के अंदर रूहानी सफ़ा नंबर 18 पर रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 ये आपके सामने है। इसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सफ़ा नंबर 82 पर वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी है। लिखता है सफ़ा नंबर 60 पर लिखता है, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने खुला हुआ है। मासवा
ये आपके सामने हवाला खुला हुआ देख सकते हैं कि मासवा इसके इसमें कुछ शक नहीं कि ये आजिज़ खुदा ताला की तरफ से इस उम्मत के लिए मुहद्दिस होकर आया है, और मुहद्दिस भी एक मानी से नबी ही होता है। वो उसके लिए नबूवत तामा नहीं मगर ताहम जुज़वी तौर पर वो एक नबी ही है, क्योंकि वो खुदा ताला से हम कलाम होने का एक शर्फ रखता है। उमूर गैबिया उस पर ज़ाहिर किए जाते हैं, और रसूलों और नबियों की वही की तरह उसकी वही को भी दखल शैतान से मुनज़्ज़ह किया जाता है। सुनिए, कहते हैं मुहद्दिस एक नबी की तरह होता है, उस पर उमूर गैबिया ज़ाहिर किए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपके मिर्जा साहब कह रहे हैं तौज़ीम आराम के अंदर। तो एक गलती का ज़ाला में क्या कहते हैं कि जिस पर उमूर गैबिया ज़ाहिर किए जाएं इस तौर के, उसको मुहद्दिस नहीं कह सकते। कादियानियों, खुद फैसला करो कि आपका मिर्जा आपको कितने बड़े बड़े मुगालते देता गया, कितने बड़े बड़े धोखे देता गया। फिर आगे लिखा, जब इस चीज़ का जिक्र किया और हमारे एतराज़ किया, सवाल हुआ तौज़ीम आराम के हवाले से, तो इसी किताब के अंदर जो है अज़ाल्ला हाम के सफ़ा नंबर 320 पर ये सवाल हुआ। आप देख सकते हैं फ़तह सलाम। सवाल क्या है कि रसाला फ़तह सलाम में नबूवत का दावा किया है। जवाब, नबूवत का दावा नहीं बल्कि मुहद्दिसियत का दावा है जो खुदा ताला के हुक्म से किया गया। फिर आगे ये तहरीर पहले भी पेश किया, फिर आगे जाके लिखता है, इसको अगर एक मजाजी नबूवत करार दिया जाए या एक शोबा कव्विया नबूवत का ठहराया जाए तो क्या इससे नबूवत का दावा लाजम आ गया? यानी कि दावा मुहद्दिसियत किया है, अगर इसको कह दिया जाए कि इसमें एक शोबा कव्विया जो है वो नबूवत भी पाया जाता है, इससे नबूवत का दावा लाजम नहीं आता। सवाल करता है कि तुम समझते हो कि मैं नबी हूँ, तो क्या इससे नबूवत का दावा लाजम आ गया जो तुमने मुझे कह दिया कि नबूवत का दावा किया है? जनाब, ये तहरीर मिर्जा साहब की है, मेरी नहीं, मुहद्दिस की तारीफ के हवाले से भी। अब फैसला आपने खुद करना है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो उसके बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है इस आयत को पेश करके कि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल के तहत मिर्जा जी की पेशगोइयों का इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में जायजा लेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ ये बातें जो मैंने बयान की हैं उनको ध्यान में रख लीजिए। नंबर 1, मिर्जा कादियानी की तारीफ के मुताबिक कादियानियों से पूछिए, बार बार पूछिए कि बताएं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस नबी का नाम पाया, किस नबी के मसील होने का दावा किया। कादियानियों से सवाल है मेरा, बताएं। एक गलती का अजाला में मिर्जा कादियानी ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इस आयत के एतबार से जो है फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, इस आयत के एतबार से इससे रोकती है जिस पर यह अमूर गैबिया में जानिबिल्लाह ज़ाहिर हो, और उस आयत के रूप से जरूर नबी होगा। गैब की खबरें पाने वाले का नाम मुहद्दिस नहीं रखा जाता। पूछिए कादियानियों से, ये मेरा सवाल है। एक तरफ ये बात, फिर देख लीजिए तहरीर, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, इससे रोकती है, और जिस पर ये अमूर गैबिया मिन जानिबिल्लाह ज़ाहिर हो वो उस आयत की रूह से जरूर नबी होगा। गैब की खबरें पाने वाले का नाम मुहद्दिस नहीं रखा जा सकता। तो जनाब, जहाँ पर जो है सफ़ा नंबर 60 पर मिर्जा साहब ने जो बात लिखी है रूहानी जिल्द 3 में, उसको भी साथ मिलाइए और खुद फैसला कीजिए कि मिर्जा जी की कौन सी बात दुरुस्त है। मिर्जा जी लिखते हैं, मासवा इसके इसमें कुछ शक नहीं कि ये आजिज़ अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत के लिए मुहद्दिस होकर आया है, और मुहद्दिस भी एक मानी से नबी ही होता है। वो उसके लिए नबूवत तामा नहीं मगर ताहम जुज़वी तौर पर वो एक नबी ही है, क्योंकि वो खुदा ताला से हम कलाम होने का एक शर्फ रखता है। उमूर गैबिया उस पर ज़ाहिर किए जाते हैं, और रसूलों और नबियों की वही की तरह उसकी वही को भी दखल शैतान से मुनज़्ज़ा किया जाता है। मुहद्दिस पर अमूर गैबिया ज़ाहिर किए जाते हैं कादियानी हज़रात। ये तौज़ीम आराम। और आपके सामने दूसरी तहरीर भी पेश किए देता हूँ, फिर देख लीजिए। दूसरी तहरीर गलती का अज़ाला की, अपना रूहानी जिल्द 18 की, जिसके अंदर मिर्जा कादियानी ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ये आयत इस बात से रोकती है कि उसको मुहद्दिस कहा जाए। ये उठाइए सफ़ा नंबर 207 और 8, वो भी आपके सामने बराबर खोल के रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए,
लीजिए जनाब, ये आपके सामने इस वक्त मैंने ये भी किताब खोल के रख दी है, एक गलती का अजाला, ये देख सकते हैं आप। ये दोनों किताबें आपके सामने हैं, मिर्जा साहब की दोनों तहरीरें आप खुद देख सकते हैं, ये आपके सामने खुली हुई हैं, ये भी और ये भी, जिसमें मिर्जा साहब ने वाज़ेह तौर पे ये बात बयान की है। ये देख सकते हैं आप, वाज़ेह तौर पे एक तरफ कहा कि ये आयत हमें मुहद्दिस को नबी कहने से रोकती है और उस पर अमूरे गैबिया दार नहीं होते। दूसरी तरफ कहा कि मुहद्दिस पर भी अमूरे गैबिया नबियों की तरह ज़ाहिर होते हैं। अब जवाब आपने देना है, गलती का अज़ाला में मिर्जा कादियानी ने गलत बयानी से काम लिया या तौज़ीम आराम में काम लिया, गलत बयानी से काम लिया। और इसी तरह अज़ाला हाम के अंदर जब ये तराज हुआ कि तुमने नबी का दावा किया तो तब क्या कहा, तो क्या ये जिस तरह जो ख्वाब है नबूवत का 46वां हिस्सा, इस तरह बात कुछ कवैया जो है वो मुहद्दिस के नबूवत के कवैया जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो क्या इससे वो नबी करार पा जाएगा, नबूवत का दावा करार पा जाएगा? यानी कि मेरा दावा नबूवत का नहीं मुहद्दिस होने का। ये सवाल ही अंदाज में किया उसने। अब बताइए इसकी कौन सी बात होती है, ये आपने जवाब देना है। ये मैंने 3-4 चीजें आपके सामने रख दी हैं, इंशाल्लाह उसके बाद अगले लेक्चर में इसकी पेशगोइयों का भी जिक्र होगा इसी आयत की रोशनी में। और फिर जो मैंने जिल और बरोज की तारीफ किया उस पर भी गौर कीजिए कि जिल का माने क्या, बरोज किया। फिर अभी आगे पूछना है इनसे कि इसने कहा है कि मैं मोहम्मद सानी हूँ और तमाम कमालात मोहम्मदी मा नबूवत मोहम्मदिया के मेरे आइना जिल्लियत में मुनक्कस हैं। इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जो कुछ हमने सुनाया है, बयान किया, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब अगर किसी बंदे के पास कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, वो कादियानी हो या मुस्लिम मौजू के मुतालिक सवाल करें, इंशाल्लाह मैं जवाब देने के लिए मौजूद हूँ। जितने भाइयों को लाइव स्ट्रीम पे सवाल करना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, आमिर खान साहब हैं, वो कुछ सवाल करना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आमिर भाई वालेकुम आपको जिया भाई। जी 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 वालेकुम जी आ रही है, अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी बेसिकली जिया भाई मेरा सवाल है, मौली साहब वैसे तो किसी कादियानी से पूछना था बट अभी अवेलेबल नहीं है, तो मेरा सवाल यह है कि ये आमतौर पे कहते रहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की है उसके हिसाब से जो मिर्जा कादियानी है ये नबी है, नौजुबिल्लाह। तो मेरा सवाल यह है, उन्होंने तो दज्जाल की भी पेशन गोई की थी, तो उस बात को ये थोड़ा सा कि दज्जाल जो आएगा वो डिस्प्यूट पैदा करेगा, मुसलमानों में फूट डालेगा, तो उस बात को ये बिलीव क्यों नहीं करते हैं कि ये दज्जाल भी हो सकते हैं? जी मेरे ये मेरा भाई, छोटा सा सवाल था। पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुस्ताहिक़ कतअन वो शख्स नहीं है जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है। हमामतुल बुशरा में मिर्ज़ा कादियानी ने खुद लिखा है कि जो बात कसम के साथ कही जाए उसकी तावील मुमकिन नहीं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम के साथ ये बात बयान फरमाई कि क़यामत के करीब ईसा इब्ने मरयम का नज़ूल होगा। अब ईसा इब्ने मरयम का नाम लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया उनका नज़ूल होगा, तो हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम पे एतबार है, हम उसकी तवील नहीं करेंगे। अब कादियानियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम पे एतबार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, ये जो इसने दावा किया है कि मैं वसीले मसीह बन के आया हूँ, तो जनाब आप लोगों का, इन लोगों का ये दावा है कि जो हदीस कुरान करीम के खिलाफ हो हम उसको कबूल नहीं करते, उसको ज़ईफ और मौजू समझते हैं, हमारे लिए वो दुरुस्त नहीं है। तो एक तरफ ये कुरान करीम से वफात मसीह का अकीदा बयान करते हैं, जब ईसा अलैहिस्सलाम को ये फौतशुदा शाबत करते हैं तो पूछना तो इनसे ये चाहिए कि भाई फिर ये हदीस जो है नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम की, वो तो आपके हिसाब से कुरान करीम के खिलाफ करार पाती है, तो फिर एक खिलाफ जो हदीस आपके नज़दीक कुरान करीम के खिलाफ है उसकी बुनियाद पर ये मसीह का दावा किस वजह से कर दिया? और उसी हदीस में दज्जाल का भी जिक्र है, उसी हदीस में बिल्कुल जो है खंजीर के कत्ल करने का भी जिक्र है, सलीब के तोड़ने का भी जिक्र है, सारे मामलात हैं। वो चीज़ें क्या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी में पाई जाती हैं? क्या उसने सलीब को तोड़ा या कि एक सलीब को तैयार किया?
انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو توضیح مرام سے کہ قادیانیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے وہ کیا ہے. ایک تو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے نا، تو قادیانیوں کا بھی عقیدہ تثلیث ہے جو توضیح مرام کے اندر روحانی حسین جلد 3 میں مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی کسی دن بیان کروں گا، وہ بھی بالکل ایک علیحدہ شکل. اور یہ حقیقت میں بذات خود کذاب و دجال تھا بغیر کسی شک و شبے کے. اس کی سب سے بڑی اور اہم دلیل یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن کریم پر ایمان اور یقین رکھتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم رہنے والی ذات ہے، ان کو اونگ تک نہیں آتی. اب مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا. تو بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود جو ہے ہر ان عیبوں سے مبرہ اور پاک ہے. جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ عیب پایا جاتا تھا کہ اسے آرام کی ضرورت تھی، وہ تھک سکتا تھا، وہ شخص تو خود کذاب و دجال ہے، وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ قادیانیوں کو سوچنا چاہیے. اگر کہیں گے تو انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں باقاعدہ طور پہ اس کا حوالہ بما سکین پیش کر دوں گا، جس میں مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اونگ تک نہیں آتی، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. یعنی جب بندہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تبھی تو آرام کرتا ہے. جی تو یہ تھی بات. حقیقت میں یہ خود کذاب و دجال ہے، لیکن یہ قادیانیوں سے سوال ہے کہ وہ سوچیں اور سمجھے، غور و فکر اور تدبر کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جی عامر بھائی. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی بھائی. جزاک اللہ جی. عامر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قیوم صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ خیر خیریت سے ہیں سارے بھائی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. بہت بہت شکر الحمدللہ جی. حضرت میرا ایک سوال تھا. یہ میں ادھر مفتی مبشر صاحب کا بھی چینل دیکھتا ہوں، اور ابھی ادھر بھی نام چل رہا تھا کاشف چودھری اور ضیاء رسول. تو یہ بھائی کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ بھائی پہلے قادیانی تھے؟ کیونکہ میں مفتی صاحب کے وہ سنتا رہتا تھا بیان، تو ان میں یہ لوگ آتے تھے ڈیبیٹ کے لیے. تو شاید ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہوں، لیکن یہ میرا تھوڑا سا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ذرا مجھے پتہ لگ جائے. میرے بھائی ضیاء رسول بھائی جو ہیں یہ شروع سے مسلمان ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے دیگر بھائی بھی مسلمان ہیں. اصل میں یہ قادیانی جو ہے نا، یہ نام بدل کے آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں شمس الدین بھائی کے چینل کے اوپر گفتگو کر رہی تھی، پروگرام چل رہا تھا، وہاں پر آقا کا غلام کے نام سے آئی ڈی بنا کے قادیانی شمس بھائی کو اور مجھے ننگی گالیاں دے رہا تھا. اب دیکھیں کہ میں تو ضیاء بھائی کے پروگرام میں ان کے چینل پہ لائیو پروگرام کرتا ہوں ہر ہفتے. اب وہ اسی آئی ڈی سے مجھے وہاں پہ گالیاں دے رہا تھا اور شمس بھائی کو بھی گالیاں دے رہا تھا. در حقیقت یہ خود قادیانی ہیں. سر یہ تو ان کا وتیرہ نا، یہ ان کا وتیرہ نا سر، یہ تو مرزا صاحب کی سنت ہے یہ گالیاں دینا. یہی نہیں، پرسوں کے دن کی جو اسٹریم ہوئی تھی نا، تو اس میں ایک بار وہ ایم اے راٹھور بن کے آیا، پھر ایک بار بابر بٹ بھائی کے نام سے آیا، پھر ایک دن اور اس سے پہلے کی اسٹریم میں وہ شمس بھائی بن کے آیا تھا آقا کے غلام چینل میں، ضیاء بھائی کے چینل پہ، اور آ کر کے گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیا تھا. تو وہ یہ جو کام کرتا ہے نا، ہاں وہ ضیاء، وہ کیا نام ہے اس کا، ذریع اللہ ہے وہ، اور وہ عمران خالو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت معذرت سید سمر رضوی صاحب سے اور اجاز صاحب سے. میں کاشف چودھری ہوں. محمد قیوم صاحب الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی عز و جل کے فضل و کرم سے پیدائشی مسلمان ہوں. قادیانیوں پر پیدائشی لعنت بھیج رہا ہوں. بچپن سے ہی میرا پنجہ جو ہے نا وہ ایسے ان کی طرف ہی تھا، تو اب بھی الحمدللہ میرا پنجہ باقاعدہ طور پر ان کی طرف ہے. اور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا، میں نے تو بس ویسے ہی اپنا تجسس کے لیے پتہ کیا تھا، تو الحمدللہ چلو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں تھوڑا سا محمد قیوم بھائی، تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا،
جی یہ اپنے اپنے حصے کا ختم نبوت کا کام اپنے اپنے حصے کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جی ڈاکٹر الحمدللہ نشان جی صاحب ہیں، اجاز بھائی ہیں، اپنا عبید اللہ بھائی ہیں، ضیاء بھائی تو شیر ہے نا، وہ تو ماشاءاللہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں. اللہ عزت دے جی سید اللہ سمر عزت دے رضوی صاحب بھی ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ کافی جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو ہم اپنے اپنے لیول پہ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. اب میں جیسے ایک مجھے جو ہے نا روم میں نیچے چھیڑتے ہیں کہ میں لجنا اسپیشلسٹ ہوں، تو پیار محبت سے مجھے سارے چھیڑتے ہیں، یہ میری چھیڑ بنائی ہوئی لجنا اسپیشلسٹ. تو یہ صحیح ہے ہے کہ ہم صحیح اپنے طور پہ ہم دیکھیں نا، ہم آتے ہیں، یہ ہمارا سب سے ادنا، جیسے فرمایا نا کہ آپ سڑک پہ پڑا ہوا پتھر یا کانٹا سائڈ پہ جی کر جی دو بالکل تو یہ آپ کے یعنی ادنا سا کام ہے آپ کا، جو ثواب کا آخری حصہ یعنی ادنا کام ہے آپ کا. یہ تو ہم ادنا سا کام کرتے ہیں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی عبید جناب اللہ بھائی ہو گئے، ضیاء رسول بھائی ہو گئے، استاد محترم جناب مفتی صاحب ہو گئے، اور اپنا جناب آپ احمد رضا بھائی ہو گئے، یہ سب تو ماشاءاللہ یہ تو انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے سے ہمیں بھی معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ الحمدللہ جی اللہ الحمدللہ آپ وبرکاتہ. السلام. اچھا الحمدللہ آپ عبید اللہ بھائی، جو میں جی ایک جی سیکنڈ مجھے ذرا عبید اللہ بھائی، آپ نے تو کئی ساری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، میں نے سنا ہے ان جی لعنتیوں کے اوپر. جی الحمدللہ اب تک 20 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے 5 شائع ہوئی تھیں، بلکہ 6. تو جو ابھی تک اویلیبل ہیں وہ 3 کتابیں ہیں. میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو. جو بھی قادیانی مجھ سے مطالبہ کرے گا، میں پہلے بھی کہتا ہوں، یہ دیکھیں مقام صحابہ اور حقیقت قادیانیت. ہر قادیانی جو میرے پرسنل میں ایڈریس بھیجے گا، یا ضیاء بھائی کو ایڈریس دے گا، یا شمس بھائی کو، یا کسی کو بھی بتا دے، انشاءاللہ میں اس کے ایڈریس پر اس کے گھر میں پوسٹ کروں گا. ایک یہ کتاب ہے، اور یہی ایک دوسری جو کتاب ہے قادیانی ذل بروز کی حقیقت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے. دوسری کتاب یہ ہے جو میری شائع ہو چکی ہے. اور تیسری کتاب یہی جس موضوع کے اوپر میرا لیکچر چل رہا ہے، غلطی کا جی ازالہ جی یا قادیانی نکالتے. اگر کوئی بھی قادیانی مجھ سے مطالبہ کرے گا، اس کو فری میں یہ کتاب انشاءاللہ میں خود ہر چیز پہنچاؤں گا. یہ میری ذمہ داری ہے. عبید اس اللہ حوالے بھائی، سے ایک جی 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 ایک بھائی جان. گزارش ہے کہ آپ اپنی ان کتابوں کو PDF میں کنورٹ کر دیجئے، کیونکہ میں انڈیا سے ہوں تو میں تو وہاں سے یہ کتابیں منگا نہیں سکتا. ذیشان بھائی ضرور انشاءاللہ یہ PDF میں بھی کنورٹ کے لیے دی ہوئی ہیں. بس ہفتے یہ نا اپنا کتابوسنہ.com محدث لائبریری ہے جو یہ جی ان جی کو بھجوائی ہیں. انشاءاللہ وہ بہت جلد اس کو PDF میں کنورٹ کر کے سکین کر کے باقاعدہ طور پہ اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے، اور ہم گروپوں میں بھی شیئر کریں گے ضرور انشاءاللہ. کیونکہ آپ کا جو نالج ہے، اس نالج کے آگے ہم لوگ تو آپ کے قدموں کی جو خاک ہے نا، اس کے لیول کے بھی نہیں ہے. تھوڑا موڑا نہیں نہیں پڑھتے ہیں میرے کیونکہ وقت نہیں مل پاتا ہے، نہیں لیکن آپ نہیں جتنی میرے بھائی، باتیں آپ کرتے ایسا ہیں نا، کریں. ود آئیڈینٹی کرتے ہیں، اتنے گزب کے آپ پروف دیتے ہیں اور اتنے حوالے دیتے ہیں کہ دیکھیے، انسان سے اگر ایک انسان ہوتا ہے، جہاں تک جو میری سمجھ ہے، تو جب وہ یا تو بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں، یا وہ بہت زیادہ گندی حرکت کرتا ہے تو لوگ اس کی کردار کشائی کرتے ہیں. یہ جو قادیانی آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، آپ کی کتابیں جواب دے رہی ہیں کہ آپ نے ان کے منہ بند کر دیے. ماشاءاللہ. جی یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں، نہ ہی میں اس قابل ہوں. حقیقت یہ کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اس کا فضل و کرم ہے. وہ اس کمزور بندے سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے. جی، اور ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ وہ کوئی بھی قادیانی آتا ہے تو ہم سے یہی سوال کر لیتا ہے کہ کون سے مسلمان ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو. مفتی بشیر صاحب قادری صاحب جو ہیں وہ استاد محترم ہیں، ہم سب کو استاد ہیں. ان کا کھلا بیان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور فرقہ واریت پہ نہیں پڑھتے ہیں. ہم اتنے دن سے یہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں، کسی نے بھی آپ سے فرقہ واریت کے اوپر بات نہیں کی ہے. لیکن جب یہ لوگ آتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو الٹا لڑانے کے لیے آتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سے مسلمان بول رہے ہو. غلط بول رہا ہوں میں اس چیز کو؟ بھائی جان ہمیں اس کا جواب دیں گے. ہم وہی مسلمان ہیں جو جیسا مسلمان اپنے دعوے سے پہلے تھا. کہیں ان کو کہ مرزا قادیانی کا دعوے سے پہلے کیا عقیدہ تھا. ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے. بات ختم. ہم بھی محمدی مسلمان تھے، اور وہ بھی اس وقت اپنے آپ کو محمدی مسلمان کہلاتا تھا، اور ہم بھی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، کسی کا ذاب و دجال کے نہیں. سمپل بات ہے. اس کو جو بھی یہ پوچھے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو کہیں گے میرا مسلک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، اس سے باہر نہ ہم گئے ہیں نہ جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ جو عقیدہ مرزا قادیانی کا تھا, جو مسلک مرزا قادیانی کا تھا, اس کے دعوے سے پہلے وہی بھائی میرا ہے. بات کرو آپ. اب مرزا قادیانی کے پہلے مسلک کو تم غلط مانتے ہو, اس کو جھوٹا مانتے ہو, اس میں یہ سب کچھ تسلیم کرتے ہو, تو آؤ اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر وہ پہلے اس کا پہلا مسلک غلط تھا تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ہے, جب ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشوں سے پورے اترے تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے امام بناؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام, یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے پورا واقعہ, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری ذریت میں سے بھی بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. تو یہاں پر میں قادیانیوں سے یہ بھی سوال کرتا ہوں, اگر ہمارے عقائد تمہارے نزدیک شرکیہ ہیں, جیسے کہ عقیدہ حیات مسیح کو تم نے شرک قرار دیا, بلکہ مرزا قادیانی نے شرک عظیم قرار دیا حقیقت الوحی میں, اگر تمہارے نزدیک ہمارے عقائد شرک پر مبنی ہیں تو جناب بتائیں ذرا کہ مرزا قادیانی کا عقیدہ بھی شرک پر مبنی تھا یا نہیں تھا؟ اس کے دعوے سے پہلے وہ بھی شرک عظیم میں مبتلا تھا یا نہیں تھا؟ اگر تو ہمارا عقیدہ شرکیہ تو اس کا بھی شرکیہ تھا یقیناً, کیونکہ وہ بھی حیات مسیح کا قائل تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ یہ بھی فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے کہ میں اس کو امامت نہیں دوں گا, نبوت نہیں دوں گا. تو جناب تو مرزا قادیانی تو قرآن کریم سے ظالم ثابت ہوتا ہے, جھوٹا ثابت ہوتا ہے, اس کو نبوت کیسے مل گئی؟ ایک طرف مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ ہے کہ میں مامور ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور دوسری طرف سے شرک عظیم کا ارتکاب کر رہا ہے, ظلم عظیم کا مرتکب ٹھہر رہا ہے, ظالم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے خلاف کیا کہ ایک ظالم کو شرک عظیم میں مرتکب شخص کو جو ہے وہ مامور کر دیا, امام بنا دیا. کہ یا پھر مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ عقیدہ شرک عظیم ہے, دونوں میں سے ایک بات کو ٹکرانا پڑے گا ان کو, یا مرزا قادیانی کو ٹکرا دیں یا اس عقیدے کو شرک عظیم کہنا چھوڑ دیں. یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے, بتائیں ان کو بھائی. جی بھائی جان. صاحب میں کچھ تھوڑا سا بول سکتا ہوں؟ جی بولیں, ضرور کریں بات بھائی جان, کریں. اچھا یہ کہ میرا یہ پہلا چانس ہے, میں بات کر رہا ہوں. تو آپ ہیں مفتی مبشر صاحب ہیں, اپنا بھائی شمس الدین ہیں, خان محمود بارک ہیں, میں ان کو بہت سنتا ہوں الحمدللہ. تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ بہت منظم ہو رہے ہیں. تو ابھی اس طرح کے جو آپ کے چینلز چل رہے ہیں, جو پروگرام ہے, تو الحمدللہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ذرا بہت اچھا کام ہو رہا ہے. کچھ لوگ, اگر ایک بندہ بھی اگر اسلام پہ آ جائے گا تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ضیاء رسول بھائی کا نیچے نمبر چل رہا ہے, مجھے آپ پلیز یہ بتا دیجیے گا کہ اگر میں ان سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کروں تو وہ آگے سے رپلائی کریں گے, یا کچھ اگر کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو قادیانیوں کی تو کیا بات ہے سر, ان کو تو آج تک یہ نہیں پتہ لگا مرزا صاحب غرارہ پہنتے تھے یا شلوار قمیض پہنتے تھے. تو آپ ضیاء بھائی کو جو ہے نا جب بھی میسج کریں گے انشاءاللہ, اگر وہ آپ کا میسج دیکھیں گے تو اس چیز کی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر وہ میسج دیکھتے ہیں تو رپلائی ضرور کرتے ہیں, اگر ان کو وقت ملا تو. آپ پریشان نہ ہو, آپ وہ کے اصل سوال میں اس بھیجیں طرح ان کہ کے سر پاس. میں سنتا رہتا ہوں نا, تو کچھ ذہن میں سوال آتے ہیں تو پھر سوال پوچھنا پڑتا ہے, تو پھر اس لیے مفتی صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جی بھائی ضرور پوچھیں انشاءاللہ. عبید اللہ بھائی آپ اپنا نمبر بھی پرسنل چیٹ میں آپ اپنا نمبر بھی شیئر کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. جی بھائی 030462652009. ایک سیکنڈ ہاں. جی جی. 0304 62 65 209 +92 ہے نا جی 209. ہاں جی +92. یہ ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں آپ تھوڑا ٹوک رہا ہوں. جب آپ وہ کنٹری کوڈ لگائیں گے نا تو پھر 3 سے پہلے والا 0 نہیں لگانا. جی ہاں اوکے. جی بھائی. جی بھائی جان, اور کسی بھائی کا سوال؟ ہاں میرا سوال جو ہے نا اس سے مرزا قادیانی صاحب سے ہٹ کر کے, وہ جو ابھی ایک نیا مودود آیا ہے نا انڈیا کا, یہ وہ مودود, اس نے جو کیا نام ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت امام مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ ابن مریم ہوں, دونوں ہوں میں. تو آج میں نے اس سے کچھ سوالات کیے تھے کہ حضرت امام مہدی کے جو ظہور کی کچھ نشانیاں ہیں ان پہ میں نے ان سے سوال کیے.
تو اس نے ہر سوال کے جواب میں اتنا ہی کہا کہ یہ جتنی بھی چیزیں سب تمثیلی ہیں، کہ جیسے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت ایک آسمان سے ندا آئے گی جو ہر انسان کو ان کی ریجنل لینگویج میں بھی سمجھ میں آئے گی. تو وہ بولا کہ یہ نیوز ٹی وی جو ٹی وی اینکر ہے نا، ان کے ذریعے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو ایسے لوگوں کا کیا علاج کر سکتے ہیں عبد اللہ بھائی جو آئے دن کوٹے جاتے ہیں؟ اچھا ایک چیز اور عبد اللہ بھائی میں کمپلیٹ کرتا ہوں. جی کریں بات. اس سے پہلے وہ پچھلے سال دعویٰ کیا تھا تو حیدرآباد کے اندر ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے اس کو گھیر لیا، اس نے معافی مانگی، اس کا پورا ویڈیو بھی ہے، اور وہ ویڈیو آپ دیکھیے محمد احمد بھائی کے پاس ہے. اس نے مطلب بہت کٹائی ہوئی اس کی، معافی مانگا، لیکن ایک سال کے بعد پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دیا. اصل میں میرے بھائی ان لوگوں کو غیر مسلم پروموٹ کرتے ہیں پوری طرح، کیونکہ شروع سے ہی حق اور باطل کے مابین مارکارائی جاری ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، اسلام اور کفر کے مابین جنگ جاری ہے، اور کافر دین اسلام کے خلاف گھناؤنی سازشیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان کے تیار کردہ لوگ ہیں جو دنیاوی مفادات کے لیے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہ ناکام و نامراد ہوں گے. باقی یہ لوگ بیسیکلی نیچری ہیں، ملک ذات کے انکاری ہیں. حالانکہ یہ خود جب مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار جب بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا موضوع پیش کر دیتے ہیں مرزا قادیانی کا جس پر وہ بالکل سوچ سے باہر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جناب بکرے کا دودھ دینا، مرد کا دودھ دینا، مرد کے دودھ پہ جناب بچوں کا پلنا، اور ایڈی سے پخانا جاری ہونا، ان چیزوں کو تو مان لیں گے. لیکن جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے پھینک کر کے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو آواز وہ اکٹھے ہو کے آ جائیں گے. اسی طرح دوسری طرف جو ہے ایک اور نبی کا واقعہ موجود ہے کہ 100 سال تک وہ سوئے رہے. یہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. ان کو یہ قبول نہیں کریں گے، یہ ان کو ریجیکٹ کریں گے، لیکن یہ مان لیں گے کہ ایک مرد کی ایڈی سے پخانا جاری ہو گیا، کیونکہ یہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے، مرزا قادیانی کی بات پر اعتماد کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد نہیں کریں گے، یہ مرزا قادیانی کی بات پر بھروسہ کریں گے. یہ ڈفرینس ہے ہمارے اور ان کے مابین بنیادی طور پہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو مسلم نہیں سمجھتے بلکہ مرتد اور زندیق سمجھتے ہیں. جی بھائی جان. جی تھوڑا سا ایک مرتد اور زندیق میں جو فرق ہے نا وہ تھوڑا سا واضح کر دیجئے. جی بھائی جان، مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے اسلام کو قبول کرے اور اسلام سے پھر جائے، یعنی لوٹ جائے، اسلام سے پلٹ جائے، وہ ہوتا ہے مرتد. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے کے بعد جو جدی پشتی قادیانی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. جو پہلے صحیح مسلمان تھا، صحیح العقیدہ تھا، پھر اس نے اسلام کو ترک کیا، قادیانیت کو قبول کیا یا کسی اور دوسرے مذہب میں چلا گیا، وہ ہوتا ہے مرتد. لیکن یہ جو جدی پشتی قادیانی ہے، ان کو ہم زندیق کہتے ہیں. وہ اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو ظاہر تو مسلمان کرتے ہیں لیکن اندر ان کے اسلام نہیں، کفر ہوتا ہے اور زندیقیت بھری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. مرتد جو اس ہے وہ لحاظ دین سے تو اسلام یہ سے یہود و پلٹ جائے. نصارہ سے بھی خراب ہے، یہود و نصارہ سے زیادہ ڈینجر ہیں یہ لوگ. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہود و نصارہ سے ڈینجر ہیں. اور یہ یہود و نصارہ نے ہی تو ان کو بھیجا ہے بھائی جان، یہود و نصارہ نے ہی تو ان کو تیار کیا ہے. ابھی دیکھیں نا، میں نے آگے بات کر رہا تھا، ایک بات آپ کو بیان کر دوں. مرزا قادیانی نے کہا تھا، پہلے بھی کئی بار یہ حوالہ دے چکا ہوں نبوت کے حوالے سے، کہ جو صاحب شریعت رسول ہے وہ نہیں آ سکتا، دوسرا آ سکتا ہے. حالانکہ جہاد و قتال کو اس نے خود منسوخ قرار دیا ہے. حرام نہیں، میں منسوخ کہہ رہا ہوں، لفظ منسوخ پہ غور کیجیے گا، اور اس کا پروف بھی دوں گا. اس نے خود منسوخ قرار دیا. اور ان کا کفار کا اصل مشن اور اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک تو اسلامی تعلیمات کو مکمل طور پر بدل دیا جائے اور اسلام کے مخالف، اسلام کے معارض، اسلام کے نام پر ہی ایک نئی چیز، ایک نیا ڈھانچہ پیش کر دیا جائے. ایک تو یہ ان کا مشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے جذبہ جہاد و قتال ختم کر دیا جائے اور ان کو اب محکوم اور غلام بنا کر رکھا جائے. اور یہ دونوں مقاصد کے لیے وہ آئے روز نئے سے نئے
शैतानी टोले को तैयार करते रहते हैं, कभी भावला नूरी की शक्ल में, कभी अलीबाब शराजी की शक्ल में, कभी असाक अखरस की शक्ल में, कभी मसैलमा कज़ाब की शक्ल में, या असवदनसी की शक्ल में, या मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी की शक्ल में, या कोई ना कोई नए से नया आए दिन आया रहता है, और उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है और जहाद व कताल है। इनको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये क़यामत तक जारी रहेगा, तो ये जारी रहना है इंशाअल्लाह। और आखिरी गलबा, आखिरी फतह दीन इस्लाम की होनी है। वक्ती तौर पर काफिर ज़रूर गलबा आ सकते हैं बाज़ मामलात में, बाज़ जंगों में, लेकिन आखिरी फतह इंशाअल्लाह दीन इस्लाम की होनी है। और इन्होंने ज़लील व रसवा होना, और ये ज़लील व रसवा हो रहे हैं। जी भाईजान, अगर किसी और भाई का सवाल हो तो। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। वालेकुम सलाम। जी समर भाई। जी, मैंने आज आपकी स्ट्रीम सुनी, माशाल्लाह काफ़ी इल्मी नुक्ते मिले सुनने को। तो मेरे आपसे 2 सवाल आते हैं उबैदुल्लाह भाई। नंबर 1 कि आप कौन सी किताब ऐसी रिकमेंड करते हैं कि जो मेरे जैसा शख्स भी पढ़ सके, और 1 या 2 किताबें हों, क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन तो सैकड़ों हज़ारों किताबें पड़ी हुई हैं। कोई ऐसी किताब मुझे रिकमेंड करें कि थोड़े वक्त पे मैं उससे ज़्यादा यानी इल्म हासिल करूं। नंबर 1। नंबर 2 मेरा ये सवाल है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में कुछ निशानियां बताई कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। वो मैं हदीस पढ़ना चाह रहा हूँ, छोटी सी है, सही बुखारी 2476। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकुमु सअ हत्ता यंज़िलु फीकुम इब्नु मरियम हकमन मुक़सितन फ़यक्सिर सलीब व यक़्तल खंज़ीर व यदह जिज़िया व यफ़ीदुल माल हत्ता ला यक़बलहु अहद। यानी जिसका तर्जुमा ये बनता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इब्ने मरियम का नज़ूल एक आदल हुक्मरान की हैसियत से तुम में ना हो। वो सलीब को तोड़ देंगे, सूरों को कत्ल करेंगे, जिजिया को कबूल नहीं करेंगे। इस दौर में मालो दौलत की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई कबूल नहीं करेगा। सवाल मेरा ये है, आपका चूंकि कादियानी जो बुक्स हैं उसका माशाल्लाह बड़ा वसी और रीज़ आपका मुताला है, मिर्जा कादियानी इस हदीस को अपने लिए किस तरह से जस्टिफाई करता है? वो क्या कहता है इस हदीस के बारे में? इसके ऊपर ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। पहली बात तो ये है कि वो कहता है कि मैं आसमान से नाज़िल हुआ हूँ, और इसको तमसीली रंग में बयान करता है, और कई जगह पर उसने ये बात लिखी है। और नाज़िल होने का माना वो पैदा होना लेता है, ठीक है जी। और दूसरी बात जो है हाकम आदल के तौर पे कि वो आदल हाकम होंगे, वो कहता है मैं हाकम और अदल हूँ। अब कुरान करीम जिसे मैं कहूँगा वही कुरान करीम होगा, जिस हदीस को मैं हदीस कहूँगा वही हदीस होगी। इसके अलावा किसी और चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। कुरान करीम का तर्जमा, तशरीह, तफसीर सिर्फ मेरी की गई कबूल की जाएगी, और हदीस जो है वो जिसे मैं हदीस करार दूंगा वही हदीस कबूल की जाएगी, क्योंकि मैं हकम व अदल हूँ। और हकम व अदल का काम यही है कि वो इस चीज़ के अंदर तफरीक पैदा करे कि कुरान करीम की सही तशरीह क्या है और हदीस सही क्या है, इसका ये तवील करता है। जहाँ तक तल्लक है सलीब को कत्ल करने का, वो कहता है कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को फौजशुदा साबित कर दिया, लिहाजा मैंने सलीब तोड़ दी, ठीक है। तो ये इसी तरह ये तवीलें करते हैं, लेकिन हकीकत में इस हदीस का जो मफहूम है और इस पर जो एतराज़ात किए जाते हैं वो भी आपके सामने मुख्तसर बयान कर दूँ। आदल हाकम होना ये ईसा अलैहिस्सलाम की सिफ़त और खूबी अल्लाह ताला ने बयान की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। वो एक हुक्मरान होंगे, आदल होंगे, इंसाफ करने वाले होंगे, ठीक है जनाब। और दूसरी खूबी जो बयान की है कि वो सलीब को तोड़ेंगे। अक्सर कादियानी यहाँ पर कटौतियाँ करते हैं, तनज़ करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब नाज़िल होंगे वो कहाँ कहाँ जाएंगे, किस तरह सलीबों को तोड़ेंगे, ये करेंगे। तो भाई यहाँ पर 2 मानी दिए हैं उलमा ने, मुहद्दिसीन ने। सलीब को तोड़ने से मुराद है कि सलीबी नज़रिए को पाश करना, लेकिन मैं यहाँ पर अगर ज़ाहरी माना भी लिया जाए तो मैं उसको बुरा नहीं समझता। सलीब लफ्ज़ वाहिद आया है, जमा के सीके के साथ नहीं आया। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी से फरमाया कि वो सलीब को तोड़ेंगे। जब वो यहूदियों और ईसाइयों के साथ जहाद करेंगे तो किसी ना किसी गिरजे में ऐसा माहौल बन सकता है कि वो सलीब तोड़ दें, और अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सलीब को तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे। हमारा ईमान और यकीन है, हम तो कटौतियाँ नहीं करेंगे।
अब दूसरी बात यह है, तीसरी कि वो खंजीर को कत्ल करेंगे। जहाँ पर भी कादियानी जो है ये शोशा छोड़ते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो ये खंजीरों के बारे में जाके खंजीरों को कितने खंजीरों को कत्ल करेंगे, हालांकि हदीस के अंदर यहाँ पर भी वहद के सीगे के साथ आया है, खनाजीर नहीं आया, खंजीर आया है, यानी एक खंजीर को कत्ल करेंगे। ये नहीं कहा कि यक्तुल खनाजीर, तो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खंजीर को कत्ल करेंगे। मुमकिन है किसी जंग के दौरान खंजीर उन पर हमला करे और वो खंजीर को कत्ल कर दें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया हमारा ईमान है, मनोवन पूरा हो सकता है, कोई मसला नहीं, हमें तबील की भी जरूरत नहीं है, मेरा ये ईमान है। अब आगे आते हैं, उसके बाद जो है कि वो जिजिया मौकूफ कर देंगे, जिजिया नहीं लेंगे। यहाँ पर दो एतराज़ उठाए जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिजिया मौकूफ नहीं किया, तो ईसा अलैहिस्सलाम क्यों करेंगे? क्या वो शरीयत मोहम्मदिया को मनसूख करेंगे? नहीं भाई, बल्कि वो शरीयत मोहम्मदिया की ताबेदारी करेंगे, और ये शरीयत का ही असूल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि वो जिजिये को मौकूफ करेंगे, कोई जिजिया देगा वो लेंगे नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तो शरीयत का तो हिस्सा बन गया कि ईसा अलैहिस्सलाम की निशानी अल्लाह के नबी की ज़बान से निकल गई, शरीयत के वो ताबे हो गए। हाँ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात ना बयान करते तब ईसा अलैहिस्सलाम जिजिया को मौकूफ करते तो फिर वे शरीयत की खिलाफ वर्जी कहला सकते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया कि वो जिजिया नहीं लेंगे, तो ये शरीयत का हिस्सा बन गया उनके लिए। जैसे कि बाज़ मामलात में बाज़ शख्सियात को इस्तिस्ना दे दिया जाता है, और इसी तरह कि वो लोगों के अंदर माल तकसीम करेंगे लेकिन कोई माल लेने वाला नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कादियानी कहते हैं, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि उससे मराद ये है कि मैं इल्म बांटूंगा और मुझसे इल्म वसूल करने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर दुनिया की मालो दौलत का जिक्र है कि लोग इस हद तक मालदार हो जाएंगे, इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा और लोग माल तकसीम करेंगे, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, कोई माल कबूल करने वाला नहीं होगा। तो ये है वो चीज़, ये खूबियाँ, ये सिफात मिर्ज़ा कादियानी के अंदर कतई नहीं पाई जाती। हाँ, इनको पंक्चर लगा के तवीलें करके जो है मिर्ज़ा कादियानी ने अपने ऊपर फिट करने की नाकाम कोशिश की है, जो किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। जी भाई जान। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह भाई। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं भी आपके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर जो कम्युनिकेट कर लूँ। ठीक है जनाब, कोई बात नहीं, जरूर करें जी। और मेरा पहला सवाल था कि कौन सी किताब आप हम लोगों को रिकमेंड करेंगे कि जो कादियानियत को नहीं जानते? जी जी, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि 2 या 3 किताबें हैं जो ज़रूर उनका मुतालिया करें। नंबर 1 मोहम्मदिया पाकट बुक, अब्दुल्ला मामार अहमद सरी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो किताब है जो काजी नज़ीर लालपुरी ने जब अहमदिया पाकट बुक लिखी, जिससे को पढ़ करके अक्सर कादियानी मुबल्लिग और मुरब्बी तैयार होते हैं, उसके अंदर इन्होंने पूरी तफसील के साथ उसका जवाब दिया है, एक एक पॉइंट का, और साबित किया है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी झूठा था, उनकी सारी तवीलों का रद्द किया है, उनके धोखों का उन्होंने वाज़ेह तौर पे जवाब दिया है। एक बात। दूसरी किताब जो है कादियानी शुबहात का अज़ाला, और तीसरी किताब है कादियानी मज़हब का इल्मी मुहासबा, इलियास बरनी साहब की। इलियास बरनी साहब की जो किताब है वहाँ पर इनका रद्द नहीं किया गया, लेकिन इनकी हकीकत दिखलाई गई है कि इनके ये अकायद हैं, इनके ये अकायद हैं, इनके ये अकायद हैं, आपको पूरे अकायद इनके वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मोहम्मदिया पाकट बुक है या कादियानी शुबहात के जवाबात हैं, ये दोनों किताबें ऐसी हैं जिनके अंदर इनके शुबहात और इश्कालात जो ये फैलाते हैं उनका रद्द किया गया है। बाकी मेरे जैसे तालिब इल्म की जो किताबें हैं वो तो आप भाइयों के सामने हैं, वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला उससे भी आपको फ़ायदे की तौफीक देगा। यही अर्ज करूँगा जनाब, और हुक्म। हाँ जी उबैदुल्लाह भाई, एक छोटा सा सवाल है इस स्ट्रीम से हट करके है कि जब हम फतावा, जैसे बहुत सारे फतावा आते हैं तो हम लोग फतावा पढ़ने का उसूल नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, और बहुत सारे लोगों के फतावे जो है या हदीस जो है, हदीसों के पढ़ने के कुछ उसूल होंगे, और या फतावे जो आते हैं तो फतावे पढ़ने के भी कुछ उसूल होते हैं, तो जरा उसके ऊपर कुछ नजरसानी करें। ये देखिए, असूली बात यह है कि जब कोई शख्स किसी से फतवा तलब करता है किसी सवाल पर, तो मुफ्ती ने उसके सवाल के तनाज़र में जवाब देना होता है। अब सवाल करने वाला अगर मुबहम सवाल करता है तो मुफ्ती का जवाब भी मुबहम होगा, अगर सवाल करने वाला तफसील के साथ सवाल करता है तो मुफ्ती उसका जवाब भी तफसील के साथ देगा।
और ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि मुफ्ती पर लाजम है कि फतवा देने से पहले पूरी तहकीक करें कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, सिर्फ सुनी सुनाई बात पर या फर्जी बात पर फतवा ना दे। तो इसलिए अगर किसी मुफ्ती ने फतवा दिया है, पहले देखिए कि सवाल क्या किया गया है और सवाल की बैकग्राउंड क्या है और किस तनाज़र में ये सवाल है और जवाब किस तनाज़र में दिया जा रहा है। इन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको बात की समझ आएगी। अगर आप इन चीज़ों से हट करके वैसे ही देखने की कोशिश करेंगे तो जनाब ना तो आपको सवाल की समझ आएगी, ना मुफ्ती साहब के फतवे की समझ आएगी, बल्कि आप समझने के बजाय हक बात को कबूल करने के बजाय गुमराही में जा पड़ेंगे। ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए हमारे मुफ्तियान को भी और हमारे उन लोगों को भी, साइलिन को भी, जो मुफ्तियान से सवाल करते हैं, कि वो पूरी डिटेल उसके तनाज़र में बयान करें और हकीकत पे मबनी बयान करें, एक मुबहम बात बयान ना करें और फर्जी बात बयान ना करें। और हमारे मुफ्तियान को भी चाहिए कि फर्जी बातों पर फतवे न दें जब तक बात क्लियर और वाज़ेह ना हो। तो ये इस हवाले से मैंने अर्ज़ करना थी। मज़ीद कोई भाई सवाल हो तो हुक्म करें। अच्छा, ये ज़िशान भाई, आपने क्वेश्चन क्या था ज़िशान भाई का? इनका क्वेश्चन ये था कि अहादीस को पढ़ने के असूल, कुरान करीम को पढ़ने के असूल, तफासीर की ये सारे अलग अलग मौजूद हैं। ये स्ट्रीम से हट के सवाल है कि इसी तरह जो फतावा जात मिलते हैं मार्केट में उलमाए कराम के, तो उनके भी कुछ असूल होंगे पढ़ने के, कि ऐसा तो नहीं कि हम वैसे ही सरसरी तौर पर फतवा पढ़ लें तो गुमराही की तरफ चले जाएं। फतवे को पढ़ने का, उसको समझने का असूल क्या है, ये बिल्कुल 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 ये इन्होंने बयान कर दिया। देखें, फतवा जो है वो हालात के मुताबिक होता है। ये हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, सवालात क्या हैं, उस पर फतवा होता है। एक ही तर्ज के कई कई वाक़यात हो सकते हैं जिनमें मुख्तलिफ फतावा। अब जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर कोई किसी मुफ्ती साहब से ये फतवा लेता है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी का जो है वो दूध पी लिया है तो क्या उससे निकाह जो है वो फासक हो जाएगा, तो मुफ्ती साहब जो है वो उसको फतवा दे देंगे जी फासक हो गया। अब दूसरा फतवा जो है वो दूसरे मुफ्ती साहब से लिया गया है, उसमें ये लिखा गया है कि बीवी का जो है वो किसी भी वजह से दूध निकाल के किसी बर्तन में रखा हुआ था तो उसके खामद ने पी लिया, तो क्या निकाह फासक होगा? मुफ्ती साहब फतवा देंगे कि नहीं हुआ। अब दोनों में फ़र्क है, क्योंकि एक जानबूझ के पिया गया है और एक गलती से पिया गया है। अब दोनों फतवों को लेके तो कोई भी बंदा जो है वो इससे गलतफहमी का शिकार हो सकता है। इसलिए उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई ने जो बात बयान की है, जो सवाल है उसका नोयत और उसका बैकग्राउंड देख के उसके मुताबिक कुरान व हदीस की रोशनी में वो फतवा होता है। और एक ही मसाइल पे मुख्तलिफ फतावा हो सकते हैं क्योंकि सवाल के पीछे बैकग्राउंड मुख्तलिफ होती है। जी जी, बस मुझे यही पूछना था, क्योंकि मैं ऐसा रहता है ना कि हम लोग मॉडर्न एजुकेशन वाले हैं, तो हम लोगों को उसूल तो पता है नहीं इन सब चीजों के। अब किसी से कोई फतवा मिल गया, पढ़ लिए, अब अकल में तो है नहीं कोई चीज, तो पता चले जहां हमें फायदा मिलना था वहां हम कहीं और पहुंच गए। इसीलिए मैंने आज उबैदुल्लाह भाई से सवाल कर लिया था। ज़िया भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया भाई एक मिनट, ज़िया भाई मैंने आपको एक स्कैन भेजा है, ज़रा साथी को वो दिखा दीजिएगा ज़रा कि किस तरीके से कादियानी जो हैं वो हमारे दरमियान दरार डालने की कोशिश करते हैं। ये शम्स भाई की स्क्रीन का ना कमेंट्स का स्कैन भेजा मैंने। कादियानी ने आका का गुलाम की आईडी लगाकर, तस्वीर लगाकर जो वहाँ पे कमेंट किए हैं, दिखाएं और थोड़ी सा इनको ना बताएं कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। जी जी, मैं दिखाता हूँ। ये हमारे चैनल पे भी रोज आके ये हरकतें करते हैं। अरे कल नहीं आया था, परसों के दिन आया नहीं था वो, एम ए राठौर बन के आ गया था। उबैदुल्लाह भाई मेरा एक और सवाल है, अगर आप इजाजत देंगे तो फिर मैं पूछूंगा, नहीं तो मैं चूंकि पहले आपको जी बेहतर है। अच्छा उबैदुल्लाह भाई, माशाल्लाह आपका मुताला बहुत वसी है और आपके ऊपर रश्क भी बहुत आता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म की वुसअत में और ज्यादा उसको वसी करे। अच्छा मेरा आपसे ये सवाल है, चले हम थोड़ी देर मान लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल हो गया, माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत। अब थोड़ी देर हम मान लेते हैं जी आ गया जी, ईसा अलैहिस्सलाम आ गया, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी 3449, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, कि वो क्या इसका तर्जुमा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा इस वक्त क्या हाल होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम तुम में उतरेंगे, तुम नमाज पढ़ रहे होगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा।
यानी कहने का मकसद है कि अगर ये ईसा था या है तो क्या इसने हमारे दरमियान पीछे नमाज अदा की है, इसकी वो किस तरह से तवील करता है? जज़ाकल्लाह खैर। ये सैयद समर भाई इसकी तवील वो ये करता है, इसने माना और मफहूम तब्दील किया। वो ये कहता है कि इसका माना ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो नाज़िर होगा वो तुम ही से तुम्हारा इमाम होगा। हालांकि इसकी माना तो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो नाज़िर होंगे उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी, जब तुम नमाज पढ़ रहे होगे और तुम्हारा इमाम तुम ही से में से होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िर होंगे। लेकिन ये कहते हैं इसने जो इसकी तहरीफ की है मानवी वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब नाज़िर होंगे तो वो तुम ही में से होंगे और तुम्हारे इमाम होंगे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम तुम ही में से तुम्हारे इमाम होंगे, यानी उम्मत मोहम्मदिया में से होंगे, वो बाहर से नहीं होंगे, यानी वही तुम्हारे इमाम होंगे। ये इन्होंने तहरीफ की है। ये देख सकते हैं आप कि ये शमस भाई की स्ट्रीम पर जा कर के एक मिर्ज़ाई जो है आका का गुलाम की आईडी लगा करके किस तरीके से बेहुदा अंदाज से कमेंट कर रहा है। और ज़िया भाई को भी सब जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, शमस भाई को भी जानते हैं। यकीन करिए वहाँ पर तो मुझे भी गालियाँ दी उसने, शमस भाई को नहीं, मुझे भी गालियाँ दी इसी आईडी से। तो ये लोग हैं कादियानी किस तरीके से इस हद तक ये गिर चुके हैं, जब ये लाचार और बेबस हो जाते तो उनकी ये हालत हो जाती। कहते हैं ना वो कुत्ता जब हल्का हो जाता है तो भौंदल जाता है। इनकी ये वो कैफियत है कादियानियों की। अब इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा किसी तरफ से, हर तरीके से इल्मी तौर पर दलाइल के तौर पर इनका नाच का बंद हो चुका है। अब ये किसी तरफ जवाब नहीं दे सकते, ना इनके बस की बात है, तो ये ऐसी हरकतें करते हैं घटिया। ऐसी हरकत उन्होंने आज से 3 दिन पहले भी की थी और यहाँ पे वो शम्स भाई बन के आए थे, याद है जिया भाई? शम्स भाई बन के आए तो चुपचाप बैठा हुआ है जरीउल्लाह, और जैसे ही शम्स भाई जिया भाई ने ओपन कर दी कि तिरियाकुल कुलूब वाले, भाग गए, 1 सेकंड में भाग गया वहां से। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीक में जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए तमाम भाइयों से इजाजत चाहते हैं। जाते हुए जिया भाई मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बस 3-4 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा जो टॉपिक मैंने आपसे बोला था। तो उसमें आज बाबर भाई से काफी बात हुई है मेरी, काफी देर तक, तो मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। और फिर अभी उबैदुल्लाह भाई का भी नंबर ले लिया हूँ, कुछ चीजों में उनसे अगर सवालात रहेंगे तो उनसे भी कर लूंगा मैं, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर मुकम्मल एक स्ट्रीम करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, इजाजत चाहते हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।